अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति की पहचान। अनजान भी घर घर आए, अनजान भी घर घर आए तो समझे उसे भगवान। जान लुटा दे उस पर अपनी, जान लुटा दे उस पर अपनी, हमारे अतिथि भाव का दुनिया करे गुणगान। Good evening, everybody. Good evening, everybody. Good evening, yes. May I request ऐसे पटेल सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आज के मेहमान को स्टेज पे ले आए। ऐसे पटेल सर, thank you, sir. Dear parents and dear students, today we have got three esteemed personalities on our stage, and I would like to introduce to them. The first one, we have Mr. Ravi Kumar Verma. He is Assistant Commandant CRPF. उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। उनके साथ आई सुशांत सिंह जी. He is PI at CRPF. Let us welcome him with a big round of applause. And I also welcome Dr. Vijay Babur. Thank you. मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, may I now request S. Patel sir to felicitate Ravi Kumar Verma ji with a shawl and a book. Traditionally, people give away bouquet. That flowers wither, but a book remains with you forever. Parents, children, let us give a big round of applause to our guest, Ravi Kumar Verma. Thank you, sir. May I now request R.J. Patel sir to felicitate Sushant Singh with a shawl and a bouquet. With a shawl and a book, I'm sorry. Please give them a big round of applause. Thank you, sir. May I now request D.G. Patel, sir, to felicitate our guest, Dr. Vijay Babur. He is a lecturer at Government Dental College at Kokra. Please welcome our guest, Dr. Vijay Babur, with a big round of applause. Thank you, sir. Dear parents and students, we are all aware about one of the activities that we had done in our school a few months ago. शायद आप सभी को याद होगा, कुछ महीनों पहले हमने आपसे कुछ राशि इकट्ठा करवाई थी। वो पैसे जो हमने इकट्ठे किए थे, आपको बहुत क्लियरली इन्फॉर्म किया गया था that these money will be utilized for the welfare of the soldiers' families and for them. ये पैसे जब कलेक्शन करने के लिए हमने आपके बच्चों को फॉर्म दिए थे, काफ़ी पेरेंट्स का हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे, सर क्यों, कैसे, कब, कहाँ, राइट सर, पैसे लेने के लिए हमारे बच्चे जाएंगे, कौन पैसे देंगे उनको. And I said that, I told all the kids whenever I went to the class, please donate 10 rupees from your pocket and ask your parents to donate a little bit amount and then go to the neighbor. Parents, I want you to give a good round of applause. आप खुद के लिए तालियां बजाओ. हमने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए. And our trustee, Mr. S. Patel sir, he has already given the check to the DO office, to the DO sir. मैं आकाश सर से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि वो हमारे मेहमानों के सामने चेक ले आए और वी विल शोकेस इट टू ऑल ऑफ यू। ये 5 लाख रुपए जो इकट्ठे हुए उसमें आप सभी का योगदान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Parents and teachers, students, let me introduce our guest, Mr. Ravi Kumar Verma. He is an engineer in metallurgy from MS University. In his initial years, he was a teacher. Sir, I was very happy when Mr. Ravi Kumar, sir, I was very happy when I read your biodata that you were a teacher. That was a great relief to me and to all my teachers. He has worked in L&T and SR Steel as engineer. He also worked in India Post and Income Tax Department. In 2016, he qualified for UPSC and then he has become a class 1 officer. That is a huge thing. He has served in Naxal area of Bastar in Chhattisgarh. He has served in Manipur, Tamil Nadu, Telangana, Haryana, Punjab, Leh Ladakh, MP, Rajasthan. He has served in 2 general parliamentary elections and 2 assembly elections, done more than 150 operations in Chhattisgarh along with special forces. He has done 3 special courses like Commando course, Disaster Management course and Internal Security course. He has received more than 15 commendation certificates, discs and medals. And he has been posted in 100 RAF, that is just opposite our school, Vastral, from 2022. May I now invite Mr. Ravi Kumar Verma to give us a few more minutes. Sir, I invite you to address our students and our parents. Parents, please welcome him with a big round of applause. Thank you, sir. It's been great pleasure for me, a proud moment for me, and a great privilege for me to be here. I mean, I was told to come here. I thought, okay, there is a annual day function. But when I entered this campus, I was very mesmerized at what the arrangements they have done. The Crystal School has done a fantastic arrangement. Let's give a huge round of applause for Crystal School first. Respected Shri Shailesh Bhai Patel, Managing Trustee, Shri D.G. Patel, Trustee, Shri R.J. Patel, Trustee, Shri Deepak Christie, Principal Sir, Shri Sonal Patel, Principal. First of all, I thank you all, the teaching staff, to invite us and make us a part of this memorable night. And, हिंदी में फावશે કે ગુજરાતીમાં? Yes. We being an all India force, we can speak many language. I will be, trilingual, Hindi, English and Gujarati. First of all, let's talk about something. There was one day, as sir has rightly said, that I was basically an engineer and then I went for teaching. Then I went for, this is my 7th job. I qualified UPSC and this is my 7th job I'm doing for RAF, and this is, it is a part of CRPF, and this is my 8th year going on. And in this 8th year, I have been to almost all stretches of India. So let's share some ideas about what's going on over here in Ahmedabad and what's going on in all other parts of India. हम वो बात करते हैं कि क्या अहमदाबाद में क्या हो रहा है और बाकी भारत के जो अलग अलग राज्य है वहाँ पर क्या हो रहा है. अभी हमने अब्दुल कलाम की बात की थी, ये खासकर पेरेंट्स के लिए है. अभी हमने अब्दुल कलाम की बात की थी. इनका घर मुझे जाने का मौका मिला जब हम कोयम्बटूर एक काम के लिए गए थे, तो वहाँ से रामेश्वरम गए थे. रामेश्वरम में उनका घर है वहाँ पर. अभी भी आप कभी कोई टूर पे जाएंगे तो
उनके घर के जस्ट पास में आगे जाएंगे तो एक उनकी स्कूल है, उस स्कूल के बाहर अभी भी वो लोगों ने लिख रखा है। हम अपने जीवन में हिंड्रेंस बहुत सोचते हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए क्या क्या हिंड्रेंस है, उनको कैसे कवर करेंगे। बहुत सारे हिंड्रेंस हैं, हमें भी थी, हम भी जब स्कूल में थे, आप लोगों को भी होती है, आपके बच्चों को भी होती है। कुछ हिंड्रेंस है उसकी हम बात करते हैं और उनको क्रॉस करके लोग कैसे आगे बढ़ गए उनकी बात करते हैं। सबसे पहला हिंड्रेंस है अपीयरेंस। आपको भी, मुझे भी और बच्चों को भी अपने अपीयरेंस पे बहुत हिंड्रेंस होता है कि यार मैं तो ऐसा दिखता हूँ तो आऊ देखा हूँ छू हूँ करी શકશું કે નહીં, સમજે? હું તો આવું દેખા હું છું, હું કરી શકશું કે નહીં, મારાથી થશે કે નહીં, પહેલો જો મારાથી સારો દેખાય છે કે દેખાય છે, બરાબર, પહેલી સારી દેખાય છે. બટ as we have seen, many people in this, not only in India, in all over the world we have seen, they have crossed this bar. Despite their appearances, they have succeeded exemplary. So appearance is not a क्या कहते हैं, appearance is not a hindrance. बच्चों के लिए सबसे पहले पेरेंट्स भी उनको बता सकते हैं कि वट एवर मे बी योर अपीयरेंस, द अपीयरेंस, अगर नॉर्थ इंडिया में कोई हैंडसम है तो साउथ इंडिया में वो नहीं होगा, साउथ में कोई हैंडसम है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ हैंडसम है तो अफ्रीका में नहीं होगा. सो दिस इज जस्ट अ रीजनल थिंग एंड एवरीबडी इज स्पेशल. सेकेंड हिंड्रेंस इज सोशल स्टेटस और मॉनेटरी स्टेटस. आप लोगों के बच्चे, कुछ लोग साइकिल पे भी आते होंगे, अरे आते हैं या नहीं? कुछ लोग साइकिल पे भी आते होंगे, कुछ कार में आते होंगे, कुछ मेरे जैसे मोटरसाइकिल पे भी आते होंगे, कुछ बहुत लग्जरी कार में आते होंगे, कुछ बिल्कुल पैदल भी आते होंगे. सबका अपना अपना स्टार्टिंग पॉइंट अलग है. लेकिन ये बच्चों को स्कूल की तरफ से भी, मैं स्कूल्स को भी बताना चाहूँगा कि बच्चों को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम ये सोशल स्टेटस से आते हैं तो हम ये नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हम सभी मतलब क्या कहते हैं, हमने अभी देखा और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स है जो बहुत 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 नीचे की परिस्थिति से आकर भी आगे बढ़ गए. तीसरा एक हमारे अंदर हिंड्रेंस होता है कि હું તો ગુજરાતી માણસ, માધ્યમનો માણસ છું, મારાથી नहीं થાય. अरे होता है या नहीं? आप लोग तो खैर इंग्लिश मीडियम है, आप लोग ही उनको इन्फीरियर फील करवाते या नहीं? तो लैंग्वेज इज जस्ट ए मैटर ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, कि मैं इस मीडियम से हूँ तो मैं कोई एक काम नहीं कर सकता हूँ या सक्सेसफुल नहीं बन सकता हूँ. ये हिंड्रेंस उनके अंदर नहीं आना चाहिए. चौथा, अर्बन और रूरल डिवाइड. बच्चों के अंदर जब, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो हम लोग किस तरह सोचते थे वो मैं रिलेट कर रहा हूँ. जब 8th स्टैंडर्ड में बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो बचपन से सिटी में रहा है, बड़ी सिटी में रहा है, इसको ज़्यादा चीज़ें पता है, वो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं गांव से हूँ. डैट इज़ क्या कहते हैं, वो एक मिथ है. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस सोसाइटी से आए हैं, रूरल बैकग्राउंड से आए हैं या अर्बन बैकग्राउंड से आए हैं, पर आपकी जो मेहनत है वो आपको आगे लेकर जाएगी. उसके अलावा और कोई मिथ आपको दिख रहा है? एक मिथ है जो हर बच्चे को होता है कि मेरा आईक्यू लेवल कम है. जो बच्चे जनरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ तक आते हैं वो उन लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं. जो बच्चे पीछे आते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है. तो उनका कॉन्फिडेंस के लिए मैं बता दूं कि इंडिया की नहीं, दुनिया की सारी एग्ज़ाम, इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो मैं दे के आया हूँ. मेरे 12મા ધોરણમાં 59% જ હતા, બરાબર. तो जब यूपीएससी नहीं मांगती है आपसे, वो नहीं मांगती है आपसे कि 12वीं में आपको 60% आना चाहिए या नहीं, वो सिर्फ 12th पास और ग्रेजुएशन मांगती है. ग्रेजुएशन में भी आपके परसेंटेज नहीं मांगते. तो आप कोई भी अपने मतलब बच्चों को जब समझाते हैं, आप लोग समझाते होंगे पेरेंटिंग के लिए, तो उनको ये समझाना है कि भाई
आप लोग अपने आप को छोटा ना समझे, अंडर कॉन्फिडेंट ना हो जाए बच्चे, और जो उसका पैशन है उसकी तरफ उसको आगे ले जाया जाए। आज नेशनल यूथ डे भी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे टाइम पे जो पढ़ाई होती थी आज के 20 साल पहले, आप लोग और उससे पहले पढ़े होंगे, आज के 20 साल पहले जब हम 7th 8th में थे तब की रिक्वायरमेंट अलग थी, तब का क्या कहते हैं, तब की इंडिया की परिस्थिति अलग थी। तब हम 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी थे, तब की हमें रिक्वायरमेंट थी कि हम इंजीनियर्स करें और डॉक्टर्स करें। आज हमारी रिक्वायरमेंट अलग है, हमें अपने बच्चों को स्कूल्स के अंदर और घर के अंदर आज के 20 साल बाद का जो भारत होगा, जो हमारा विकसित भारत का एक लक्ष्य है 2047 के अंदर, वहाँ तक ले जाने के लिए उसके लिए तैयार करना है। एंड क्या सभी अग्री करते हैं क्या, जो हम घर पे करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, स्कूल्स में और घर पे जो करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, क्या हम अग्री करते हैं? So the best way to teach any person is educate through example। हम लोग अपने घर पे बर्ताव जिस तरह करेंगे, आजकल आप लोग बहुत कुछ देख रहे हो, मेरा स्पेशल फोकस रहता है, हम लोग बहुत सारे ड्राइव्स भी चलाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो महिलाओं का सम्मान करना बच्चों को बचपन से सिखाना पड़ता है, स्टेज बाय स्टेज। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च भी चल रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, तो उसके ऊपर पता चला कि क्यों ये हो रहा है। तो ये चीज़ें स्टार्ट होती है बचपन से, जब उसके दिमाग धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, तो उसको महिलाओं का सम्मान करना सिखाना पड़ता है। तो वो आप घर के अंदर और स्कूल्स के अंदर जैसे सिखाएंगे, वो बड़े होके वो ही क्वालिटीज़ को इंकलकेट करेंगे। इसके अलावा कंपटीशन का फियर बहुत होता है बच्चों में, कंपटीशन का फियर। मैं आज सेलिब्रेशन का माहौल है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस एक जो चीज़ है जो मैं फेस करता था उस समय, एक बार मैंने भी सपना देखा था ऐसे, मैं वहाँ बैठा था और यहाँ पर सूरत में पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे एक प्राची देसाई है, एक एक्टर है प्राची देसाई, वो सूरत की है, वो आए थे, और भैयू जी महाराज और एक अरुणिमा सिन्हा वो आए थे स्टेज पे। तो उस दिन मैंने सपना देखा था कि एक दिन मैं भी कभी स्टेज पे जाके बोलूँगा किसी के सामने। आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 25वीं बार मैं स्टेज पर आकर बोल रहा हूँ, और मुझे पेपर में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कैसे डेवलप होता है, अपने बच्चों को आप फियरलेस बनाना है। फियरलेस किस तरह? वॉलंटियरिंग। अभी मैं बताऊँगा कि 2 बच्चे आगे आ जाओ इधर, आप मत आओ, और कोई 2। हाँ, बस बेटा, बस, वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाओ। ये होता है फियरलेसनेस। वॉलंटियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉलंटियरिंग, हमें मौका मिलता जाएगा लाइफ में, लेकिन मौका उसी को मिलता है जो लेने के लिए बैठा होता है। मैं अपना एक छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरे पापा की कंट्रोल है, हमारे घर में खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। मेरे पापा राजस्थान से माइग्रेट होके सूरत आए थे आज के 35 साल पहले, 35-40 साल पहले, और केरोसिन का वो बिजनेस किया था, ठीक है। उसके बाद में ना मेरा कोई बड़ा भाई है, मैं ही घर में बड़ा हूँ, ना मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं, ना मुझे इतनी अच्छी स्कूल मिली क्रिस्टल जैसी जो एक प्लेटफॉर्म दे सके। तो धीरे करके इससे पूछा उससे पूछा, हाँ ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, हाँ वहाँ पे ये अच्छा है क्या, अच्छा इसके बाद 12માં પછી શું કરું, 10માં પછી શું કરવાનું, 8 लाख टका आया हवे શું करूँ, समझ आया। और आप मुझे देखिए ना, मैं बहुत ज़्यादा हाइट है मेरी, ठीक है, फोर्स के अंदर लोग बोलते हैं हाइट है ना, मेरा कलर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन मुझ में एक चीज़ थी जो मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन मेरे पास एक उमंग थी कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। मैं लोगों को देखता था कि हाँ ये स्टेज पे जाकर कैसे बोलता है। मैंने वॉलंटियरिंग करना स्टार्ट किया, मतलब जहाँ पे भी कोई भी कंपटीशन होता था मैं कोशिश करता था जाऊँ।
हमारे वहाँ सूरत में नर्मद लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे क्विज़ कंपटीशन होता था, तो क्विज़ में हम लोग सिर्फ हिस्सा लेने जाते थे, हमें नहीं लेते थे तो भी हम जाते थे। फिर धीरे धीरे मैं इंजीनियरिंग 12th पास आउट हुआ, इंजीनियरिंग करने गया। इंजीनियरिंग के बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको यूपीएससी के लिए पढ़ाई करनी हो। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग गया और वहीं पे मैं पढ़ने भी लगा, पढ़ाने भी लगा। फिर मैंने गुजरात के पीआई और पीएसआई कांस्टेबल्स इनकी एग्ज़ाम्स होती है उसमें पढ़ाने लगा। उसके बाद मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को घर जा के पढ़ाने लगा, साइकिल ले जाके पढ़ाता था। उसके बाद में मैंने एक पहली जॉब L&T SR में किया था। आप मानेंगे मेरी फर्स्ट सैलरी वाज 7,000 इन 2012। 2012 में 7,000 रुपये की फर्स्ट सैलरी थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैं इंडिया पोस्ट में गया 2 साल। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यूपीएससी क्वालिफाई किया। और आप मानोगे नहीं, आई वाज 74 kgs व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, और मैं 100 मीटर भी चल नहीं पाता था। आज हम लोग 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो I just want to motivate the child that if I can do it, everybody can do it. अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। और आपको तो प्लेटफॉर्म मिला है सर, इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग। हम लोग इवेंट्स में जाते रहते हैं, हमारे कैंप में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो हम देखते हैं अच्छा परफॉर्मेंस बहुत देखा है। गुजरात गवर्नमेंट के इवेंट होते हैं, यहाँ कांकरिया में होते हैं, फिर रिवर फ्रंट में होते हैं। लेकिन इस एज ग्रुप में और इतनी वैरायटी का टैलेंट, ये बहुत एग्जेम्पलरी है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट क्रिस्टल स्कूल एंड ऑल द पेरेंट्स हु आर अपब्रिंगिंग देम। आई अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग अस, एंड आई bid very success to this school and all its students and teachers. Thank you very much. थैंक यू रवि सर। रवि सर का लिस्ट नाम फाइनल हुआ, उससे पहले मैं 2 बार CRPF में जाके आया, वहाँ पे RAF में। एंड लाइक पहले कौन आने वाले थे, दूसरी बार कोई और आने वाले थे, तीसरी बार कोई और आने वाले थे। तो मुझे जो मीना सर है उन्होंने कारण दिया था कि सर हमारे यहाँ ड्यूटी अलग अलग होती है और थोड़ी तकलीफ़ें होती है, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इश्यूज, सो वी आर नॉट एबल टू फाइनलाइज। फिर फाइनली मुझे रवि सर का नाम दिया गया था। एंड आई थिंक सर आपको आना, इट वॉज गुड फॉर अस। आपने बहुत सारी ऐसी बातें की है जो हमारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत काम आएगी। पेरेंट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यहाँ 6 to 8 के पेरेंट्स और बच्चे बैठे हैं, कुछ बड़े पेरेंट्स और बच्चे भी है। एक चीज़ जो अभी जो फोटोज चल रहे हैं, 3 years ago we had gone to RAF camp. There I met one Mr. Rajesh Tiwari. He is also class 1 IAS officer. Sorry, he is also class 1 officer. और उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब बच्चों के सामने, कि सर आप दिन में कितनी बार आईने में देखते हो घर से निकलने से पहले? मैंने बोला डेली मंडे टू सैटरडे तो बाथरूम में एक बार रेडी हो गया, एक बार कंघी की, एंड देन आई एम रेडी, आई सेड। तो बोला सर आप गेस करो मैं कितनी बार करता हूँगा? ऐसे सर 1 बार या 2 बार। बोले नहीं सर मैं 5 बार अपने आप को आईने में देखता हूँ। तो मैं थोड़ा मतलब आई वॉज सरप्राइज और थोड़ा लगा कि क्यों ऐसा सर। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, पेरेंट्स स्पेशली चिल्ड्रन, मैं आपको ये बात बोल चुका हूँ क्लासेस में। उन्होंने बोला था कि सर आप मुझे कैसे देखते हो? ऐसे सर आप वर्दी पहनते हो। बोले मेरी वर्दी के कारण आप मुझे सलाम करते हो, राइट? भले आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन अगर आपने रास्ते में मुझे देख लिया तो आप में भारत के प्रति गर्व होगा, मेरे प्रति भी गर्व होगा, मान सम्मान होगा। तो मेरी वर्दी जो है ये मुझे मान सम्मान दिलाती है। तो बोले अगर मेरी शर्ट को आयरनिंग ठीक नहीं हुई है या मेरे पैंट ठीक नहीं है तो मैं वापस शर्ट निकाल के आयरनिंग करूंगा। अगर जूते पे पॉलिश नहीं है तो मैं वापस पॉलिश करूंगा। अगर मेरे सॉक्स फटे हुए हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर हेयर प्रॉपर नहीं है तो मैं वापस हेयर ऑयल डाल के या व्हाटएवर सेट करके मैं अपने आप को 5 बार देखता हूं, बिकॉज मेरी वर्दी का मान सम्मान है। इसीलिए मैं हमेशा आप सबको बोलता हूं बच्चे, दैट यूनिफॉर्म गिव्स यू एन आइडेंटिटी. Uniform gives an identity to everybody.
थैंक यू सर। दूसरी और एक छोटी सी बात, हम लोगों को 8 बजे का टाइम दिया गया था, बहुत सारे लोग जल्दी आ गए, लेट आए, ये वगैरह। उनको 8 बजे का टाइम दिया गया था, 8 से पहले 5 मिनट तक सर बाहर आ गए थे। सो दे आर वेरी पंक्चुअल, डेडिकेटेड। थैंक यू रवि सर, थैंक यू सुशांत सर, थैंक यू डॉक्टर विजय बाबर ऑल्सो फॉर being our guest of honor today. Thank you, sir. May I request S.A. Patel, sir, to take our guest. Sorry. Please, sir. मैं बार बार आपके और आप डांस के बीच में आ रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये है ना, मैंने देखा है हमारे भी कैंप के अंदर स्कूल्स चलते हैं, हम लोग बहुत स्कूल विजिट करते रहते हैं। हम लोगों ने गांव अडॉप्ट कर रखे हैं बहुत सारे अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आजकल बच्चों की पंक्चुअलिटी पे बहुत इश्यूज आ रहे हैं, टाइम पे नहीं भेजा जाता है। और दूसरी बात, स्कूल यूनिफॉर्म पे हमेशा इशू रहता है। हमें टीचर्स हमेशा कंप्लेन करते हैं, जहाँ भी हम गाँव में जाते हैं वो करते हैं कि बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म सही तरीके से नहीं पहनाते हैं। और जो प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म है स्कूल का, जो सभी को पहन के आना चाहिए। भाई यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है यूनिफॉर्मिटी, समझ आ रहा है? यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसा। तो यूनिफॉर्म का बहुत महत्व है। अगर मैं यहाँ पर बिना यूनिफॉर्म के आ जाता तो आप लोग बोलते आ कौन आवी गयो, समझे? तो स्कूल्स में यूनिफॉर्म का बहुत महत्व है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और बाकी आप किसी और से मिले सोशल लाइफ में तो भी उनसे बताएं। स्कूल्स, बच्चों को यूनिफॉर्म पे गर्व होना चाहिए और उनको यूनिफॉर्म का महत्व होना चाहिए कि नहीं, मेरी यूनिफॉर्म अच्छी है तो उसको स्कूल जाने का अच्छा फील होगा। अगर आप लोग उसमें मेहनत नहीं करेंगे और जैसे तैसे, हाँ ठीक है, अरे ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 2 यूनिफॉर्म ले लो, एक दिन एक आयरन किया, उसको धोने दे दिया, दूसरी, है ना, ज़्यादा तो उसमें लगता नहीं है। तो उसको अच्छे आयरन क्लोथ्स पहनाएंगे तो क्या कहते हैं, उसको भी अच्छा फील होगा, है ना। और अच्छे कपड़े पहनने के बाद उसको लगेगा कि हाँ अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उसको गौरवान्वित फील होगा। थैंक यू वेरी मच।